Hello students, I'm Ridhima. I welcome you to English Literature by Ridhima. So let's dive into today's class. In the previous class, I had completed My Mother at 66 by Kamala Das. You can go and watch it. Hope you all had understood that poetry. So today we are starting with next poetry, that is Keeping Quiet by Pablo Neruda. Keeping Quiet अपने आप में वो पोइट्री है बेटा जिसमें हमें मेडिटेटिव होना पड़ेगा, जिसमें हमें सेल्फ आत्मचिंतन, बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर माइंड, हाउ आवर माइंड इज प्रोसेसिंग थिंग्स, क्या हम सोच रहे हैं और हम किस चीज में हमें स्टिलनेस, कामनेस, शांति मिलती है, और हमें पॉज लेने के लिए बोल रहा है दैट वी आर वॉकिंग थ्रू द लाइफ इन अ स्पीड जिसमें हम आसपास की चीजें भूलते जा रहे हैं. तो वी शुड बी कामर, साइलेंट एंड अंडरस्टैंड थिंग्स अराउंड अस. इट इज आस्किंग अस टू इंट्रोस्पेक्ट. रेट्रोस्पेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट दो वर्ड्स हैं. रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि हम बाहर का सर्वे करते हैं, रेट्रोस्पेक्ट करते हैं क्या क्या गलतियां औरों ने करी या हमने करी. जब हम अपने बारे में अपनी गलतियों को ढूंढते हैं, सोचते हैं, तो उसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट, आत्मचिंतन करना, राइट. तो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द मेडिटेटिव टोन ऑफ लाइफ and how one should live a life with calmness. And let's further on read. And Pablo Neruda, again, he's a very interesting poet. He wrote about nature in a very, very easy manner. Although he lived in South America with a climate which is very, very different from us. हमारे climate से उसका climate बहुत ज़्यादा different है. एंड उसने जितनी भी पोइट्रीज लिखी हैं वो नेचर के अराउंड लिखी हैं, कामनेस, हमें लाइफ को कैसे समझना चाहिए, बेसिकली वो ये बताते हैं. Pablo Neruda, 1904-1973, is the pen name of Neftali Ricardo Reis Bastelo, who was born in the town of Parel in Chile. Pablo Neruda, 1904-1973 when he died, is the pen name of Neftali Ricardo Reis Bastola, who was born in the town of Parel in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images. Images उनकी poetry के वो read करने के बाद you will always have an image of the surroundings, what he's talking about or where he's taking you, okay? Which makes them no less beautiful. So therefore you have, जहाँ भी हमारी imagination पहुँच जाती है, those things come alive. So that is why his poetries always feel beautiful, and he won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In his poems, Neruda talks about the necessity of quiet introspection. I told you, introspection करना है, and I think this is a very relevant poetry for all of us. Creating a feeling of mutual understanding among human beings. Human beings do not understand each other, rather than they are always busy with their own problems, own life. And आजकल तो लोग बोलते भी ignore and do what is best for you. I don't think so. Our writers, our poets, they have made us that kind of person. जब तक हम औरों का नहीं सोचेंगे तो क्या कोई हमारा सोचेगा कभी? नहीं. और क्या हम खुद के लिए सोच के बस अपनी लाइफ को बेस्ट कर सकते हैं? नो. We need people. Irrespective of हम क्या सोचे कि हम कितने केपेबल हैं, we'll always need people, community and humanity. So that is what the writer is trying to tell us in this poetry. Okay. What does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? Keeping quiet. The easiest way जो हमें इस टाइटल को पढ़ के लगता है that हम सबको शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, और चुप रह के थोड़ी देर when we are quiet, we are able to listen to the world very easily. When we are quiet, we are able to understand ourselves very easily. So that is what the poetry is asking. Even the first line, let me read. Now we will count to 12. हम काउंट करेंगे. मेडिटेशन, आप बेसिक मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो आपको क्या बोला जाता है? आप काउंटिंग से स्टार्ट करो, 1 2 3. अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करते हुए, अपनी ब्रेथ के ऊपर ध्यान लगाते हुए आप काउंटिंग से स्टार्ट करेंगे तो आप जल्दी ही कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, एकाग्रचित हो पाएंगे. दैट इज व्हाट द हिंदी इज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर ब्रेथ, राइट. नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all be quiet, keep still. I'm not just reading the poetry, I'm telling you the meaning of it also. यहाँ पे इन दो लाइनों में ये नहीं बोला गया कि आपको सिर्फ काउंट करना है. इसमें ये बोला गया है कि आप पोइट्री पढ़ने से पहले, पोइट्री इवन स्टार्ट करने से पहले एकदम स्टिल हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, जिससे आपको पोइट्री समझ आ पाए.
और सब काउंट करेंगे, राइट? मतलब कि सब everybody will concentrate on the poetry and themselves. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. And he's saying that for once मतलब कि एक बारी के लिए सारी दुनिया शांत हो जाए तो हमें ये बात समझ आएगी कि हमें लैंग्वेजेस की जरूरत नहीं है. If we will not speak in any language, let's stop for 1 second. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. हम अपने आर्म्स मूव नहीं करते, हम अपनी लैंग्वेजेस में इतनी ज्यादा बात नहीं करते, हम शांत होने की कोशिश करते हैं इवन फॉर 1 सेकेंड एंड इवन फॉर वंस इन लाइफ. आपको याद है जब कोरोना आया था, कोविड, एंड दैट पॉइंट कोविड-19 के टाइम पे एवरीथिंग हैड स्टॉप्ड. सब शांत थे, सब अपने घर में क्वारंटीन थे एंड एवरीथिंग एट दैट पॉइंट फेल्ट वेरी स्टिल. द नेचर हैड हील्ड हिमसेल्फ. नेचर कितना हील हो गया था, कहीं पोल्यूशन नहीं था, एवरीथिंग वाज टर्निंग वेरी डिफरेंट, राइट? So similarly, जैसे वैसा टाइम था, उसी टाइम के बाद, although it was not a very right time, yet we are asked to, bring that stillness to ourselves for once, so that हमें, self को acknowledge करने का टाइम मिले या समझने का टाइम मिले खुद को. And in the last line of the second paragraph, he's saying not to move your arms means not to just sit like this, but not to do a lot of things with your arms or with your hands, like machine ka kaam and all those things. Do not do all of those things at once. Just be still at once. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. एक्सॉटिक होगा वो मोमेंट. मतलब कि एक्सॉटिक मतलब समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, अनयूजुअल, समथिंग वेरी न्यू. एंड दैट न्यू थिंग विल ऑब्वियसली वो बिना रश के होगी. कोई कहीं भागना नहीं चाहता. देयर इज नो हसल इन पीपल्स लाइफ. देयर इज नो, पीपल आर नॉट रनिंग, पीपल डू नॉट हैव थिंग्स टू डू, देयर इज नो हसलिंग. सो दैट इज द पॉइंट ही इज टॉकिंग अबाउट, दैट यू वुड बी वेरी स्टिल एंड यू वुड बी वेरी कामर विदाउट इंजन्स. कोई कार लेके, अपनी बाइक लेके अपनी कहीं भाग नहीं रहा है, किसी को कहीं जाना नहीं. एवरीबडी इज स्टिल, शांत, एट वन प्लेस. We all would be together and there would be a feeling of togetherness. हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जैसे हमें कहीं जाना है या फिर हमें कहीं टाइम से पहुंचना है, कुछ काम करना है. सो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अब आसपास के लोगों को साथ लेके उनको समझें या फिर उनके साथ एकता की फीलिंग हो. देयर वुड बी अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस विद देम. नो. एंड ही इज सेइंग इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. इट वुड बी स्ट्रेंज दैट एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, बट इट वुड बी वेरी, calm. And again and again this word calmness would be driven in every paragraph, because that is what poet is asking us to understand in our life. Okay, here you will also see an image of a tree, like hands, and उसके आसपास leaves हैं, as if tree को humanization, personification किया गया है tree का, उसको human की form दी गई है, so that हमें समझ आए कि अर्थ सिर्फ एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ही नहीं है. इट हैज प्लांट स्पीशीज विच आर अलाइव एंड वी शुड बी वेरी कंसिडरेट टू एवरीबडी एंड एवरीथिंग अराउंड अस. ओके, next paragraph. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. So over here in the first line he's saying, अगर सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, तो जो फिशरमैन हैं वो कोल्ड सी के अंदर जाके, कोल्ड सी में जाके वेल्स को नहीं मारेंगे, उनको हार्म नहीं करेंगे. वेल्स की किलिंग, एनिमल्स की किलिंग कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जब अगर सब लोग ये एक्टिविटी करनी बंद कर दें और वो सोचना शुरू कर दे कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं क्या, हम किसी को हर्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने काम में, कि वेल्स को इकट्ठा करने जाते हैं, वेल्स को किल करने जाते हैं. दे आर हर्टिंग द लाइफ बेसिकली. इन द नेक्स्ट लाइन ही सेइंग, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट. जो लोग सॉल्ट का काम कर रहे हैं, वहां पे जो वहां पे जो लोग सॉल्ट इकट्ठा करते हैं सी शोर पे, एंड सॉल्ट के काम में जितने भी वर्कर्स लगे हुए हैं, वो सारे वर्कर्स को पता है, इतना काम है उनके ऊपर, इतना प्रेशर है, दैट दे डू नॉट रिमेम्बर दैट दे आर हर्टिंग देमसेल्व्स आल्सो. वो इस तरह काम में इन्वॉल्व हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनके हाथ फट चुके हैं, उनके हाथों पे कट आ गया है ड्यू टू वो बहुत ज्यादा सॉल्ट के अंदर रहे हैं हाथ. अगर वो शांत होंगे तभी तो अपने हाथों को देखेंगे कि यार हाँ, हमारे हाथों पे तो कट्स पड़ गए हैं ड्यू टू अ लॉट ऑफ वर्क इन द सॉल्ट, राइट. ऐसे ही हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं. इवन चिल्ड्रन हु आर राइटिंग अ लॉट इन द पेपर, देखा होगा उनके यहाँ पे हाथों पे गड्ढे पड़ जाते हैं उंगलियों के अंदर, आपने खुद के देखा होगा. एंड जब वो पेपर लिखना बंद करते हैं तब उन्हें एकदम याद आता है, अरे हाँ, दैट इट इज हर्टिंग. सो यू हैव टू बी काम एंड क्वाइट एंड स्टिल टू अंडरस्टैंड दैट यू आर हर्टिंग. आजकल के लोग डाइवर्ट करते हैं अपने माइंड को, नो मैटर उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, दे आर ऑलवेज फाइंडिंग न्यू वर्क टू डू, दे आर ऑलवेज फाइंडिंग न्यू थिंग्स टू डू. अगर वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने जो किया है उसकी वजह से वो इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं, अगर ये हम सोच लें तो हम हील होना स्टार्ट हो जाएंगे. बट लोग
हीलिंग के लिए शांति जरूरी है, तो लोग शांत नहीं रहते हैं। इवन आजकल बच्चे, एवरीबडी अराउंड अस, वो एक काम छोड़ के नेक्स्ट काम कुछ और, दे डू नॉट नो दैट व्हाट दे आर फीलिंग, हाउ दे आर, व्हाट इज देयर मेंटल हेल्थ। टू हील योर मेंटल हेल्थ यू हैव टू बी क्वाइट, स्टिल, इन अ वन, एक काम जगह पे शांति से बैठने से पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, रादर देन ड्राइविंग योर माइंड एंड हार्ट टू समथिंग और द अदर, कि ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है। नहीं, सिट, बी क्वाइट, नो योर सेल्फ, हील योर सेल्फ. That is what he's saying in this line. Those who prepare green wars, wars with gases, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Basically, he's talking about the people, those who prepare green wars. Green wars. What are green wars? So, green wars are the wars जब resources के लिए लड़ाई होती है, जब फॉरेस्ट के लिए लड़ाई होती है, जब प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, लाइक Amazon is being destroyed, as you remember, and where people do not take care of nature rather than fight upon it, कि ये एरिया हमारा है, रिवर हमारी है, रिवर आगे नहीं जाने देंगे या फिर रिवर को स्टॉप कर देते हैं. ऑल दीज वॉर्स अपॉन रिसोर्सेज आर कॉल्ड ग्रीन वॉर्स. वॉर्स विद गैसेस, wars with gases, wars with fire. Wars with gases का मतलब है people are trying to kill people with whatever weapon they are able to have. Gases, you have seen so many poisonous gases have been thrown around and कितने सारे लोग मरे हैं उसके बीच में. फायर से लोगों को मारा जाता है, वॉर में फायर यूज होती है, गैसेस यूज होती हैं. एंड वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, एंड इतना ज्यादा वायलेंस करने के बाद भी वो क्लीन कपड़े पहनेंगे. ऐसा क्लीन कपड़े का मतलब है अपने आप को ऐसे नॉन वायलेंट दिखाएंगे, शांत दिखाएंगे, काम दिखाएंगे, प्योर हैं वो बिल्कुल. और कहाँ चले जाएंगे, एंड उसके बाद वो अपने ब्रदर्स के पास चले जाएंगे. इन वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, एंड दे वुड रादर वॉक. एंड ऐसी लड़ाई लड़ने के बाद जहां पे कोई सर्वाइवर ही नहीं है, वहां जीतने का भी क्या फायदा. उन विक्ट्रीज के बाद वो अपने ब्रदर्स के साथ ऐसे चलेंगे जैसे उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं हो, जैसे देयर वाज नो वॉर, देयर वाज नथिंग. दे विल प्रिटेंड दैट. सो ही इज सेइंग दैट दिस इज ऑफ नो यूज. ही वुड, एंड डूइंग नथिंग का मतलब ये नहीं है लेजीनेस. डूइंग नथिंग स्टैंड्स फॉर बीइंग काम एंड डूइंग नो हार्म, एंड दे विल वॉक विद द ब्रदर्स डूइंग नो हार्म एज इफ दे नेवर डिड एनीथिंग, राइट? दैट इज रॉन्ग. In the next paragraph, the poet says, "What I want should not be confused with total inactivity." वो कह रहा है कि उन्होंने ऊपर लिखा कि डूइंग नथिंग. डूइंग नथिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ मत करो. डूइंग नथिंग का मतलब है डूइंग नो वॉर, डूइंग नो हार्म, डूइंग नो इनजस्टिस टू एनीवन आउट देयर ऑन दिस अर्थ, बी इट स्पीशीज, बी इट एनिमल, बी इट ह्यूमन बींग्स. कोई भी, किसी को भी हर्ट मत करो. इनएक्टिव रहो. जब आप हर्ट नहीं करोगे, इनएक्टिव होगे, एटलीस्ट आप शांति तो लेके आ पाओगे दुनिया में. What I want should not be confused. वो कह रहा है आप कंफ्यूज मत करो मेरे इनएक्टिविटी को कहने के मतलब ही इज सेइंग दैट डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ बीइंग इनएक्टिव. आपको इनएक्टिव नहीं होना है. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. No truck with death means he refused to associate or deal with anything or anything that is harming the people around. वो कह रहा है कि वो जो ट्रक भर भर के लोगों की डेड बॉडीज आती हैं वॉर के बाद, वो कह रहा है उनके साथ मुझे एसोसिएट नहीं होना, उनके साथ मुझे कोई भी रिलेवेंस नहीं रखना. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अगर हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमारा माइंड जाता है, हमारी लाइफ कैसे चलती रहे, अब हम क्या करें, क्या सीखें, अब हम कौन सी जॉब करें, अब हम कहाँ जाएं. सो हमारी लाइफ मूव कैसे करती रहे, अगर हम ये सिंगल माइंडेडनेस हटा देंगे, इस एक सोच को हटा देंगे, वुड कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस डू नथिंग, एंड एक बारी के लिए शांत होके कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करके देखते हैं. If you people would have seen, there is an advertisement also. मुझे एक ad याद आ रहा है, किसी चॉकलेट का ad है which talks about that कुछ ना करना भी अच्छा है, doing nothing is also good. So it is kind of उसके साथ जा रहा है ये. Now we are reading the lines I have highlighted. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. वो कह रहा है कि परहैप्स जो साइलेंस है, जो ह्यूज साइलेंस है, जो बहुत शांति, जब वो शांति को हम इंटरप्ट कर देते हैं, वो सैडनेस ऑफ नेवर
अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। वो कह रहा है कि कितना ज्यादा दुख की बात है कि वी आर ऑलवेज मूविंग, दैट हम अपने आप को समझ ही नहीं पाए हैं, हम अपने आप को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ ऑफ डेथ। थ्रेटनिंग मतलब कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेथ, वी आर गोइंग टू डाई, बट इन दैट ऑल्सो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव टू बी क्वाइट, वी हैव टू बी सेल्फ कॉन्शियस इनफ टू नो आवरसेल्फ। वो हम भूल गए हैं इस मूविंग लाइफ में। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now this line is very deep and it is telling us, शायद हमें अर्थ से ही सीखना चाहिए, शायद हमें अर्थ ही समझा सकती है कि perhaps the earth can teach us, क्या समझा सकती है, क्या सिखा सकती है, as when everything seems dead, जब सब कुछ मर जाता है, सबको ऐसा लगता है कि there is no life left and everything is dead. You'll see in winters अपने घर के प्लांट्स को देखना, कोई ना कोई ऐसा प्लांट होगा जो ऐसा लगता है तो मर गया, अब तो इसमें लीव्स ही नहीं आएंगी, जान ही नहीं आएगी। और फिर देखना जब थोड़ा सा वेदर चेंज होगा, उसे सनलाइट मिलेगी और वो फिर से अलाइव हो जाएगा, उसमें फिर से ग्रीन लीव्स आ जाएंगी, वो फिर से चेंज हो जाएगा। सो एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। दैट इज हाउ लाइफ इज। फर्स्ट यू हैव टू बी स्टेगनेंट, स्टॉप। आपको जिंदगी में भी कहीं आगे बढ़ने के लिए थोड़े से पीछे कदम लेके शांत होके सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। फर्स्ट यू हैव टू बी डेड इनसाइड टू फील अलाइव, राइट? You understand this point that you have to feel the pain, you have to be quiet, you have to be dead inside to feel alive. Then when you will feel alive, you will understand that what is the difference between the two. खुश होने के लिए some sadness is also important. So वही वाली बात है। Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. Now I'll count up to 12. Again जो लाइन से स्टार्ट हुआ था पोइट्री, उसी लाइन पे एंड हो रही है कि मैं फिर से 12 तक काउंट करूंगा। बट ही इज सेइंग नाउ यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। वो कह रहा है कि अब तुम्हें समझ आ गया है कि क्वाइट होना कितना जरूरी है, शांत होना कितना जरूरी है। तो आप शांत होंगे और मैं आपको आपके थॉट के साथ, आपके चिंतन के साथ और मेडिटेशन के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ। दैट इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग मेन थीम्स विद यू। The first theme is silence and stillness can bring peace. So silence and stillness की वैल्यू हमें पूरी पोइट्री में पता चल रही है। देन उसके बाद है ह्यूमैनिटी, ह्यूमन यूनिटी। ओके कि ह्यूमंस को साथ आके कैसे जीना है, यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अवॉइड वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शन, ये हमें पोइट्री के अंदर दिखता है, अवॉइडिंग वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अपने आप में आत्मचिंतन करना, अपने आप को समझना, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड लाइफ डज नॉट स्टॉप, इट गोज ऑन। लास्ट में भी ही से कि अब मैं चाहता हूँ, ही इज ऑल्सो गोइंग, एवरीथिंग इज मूविंग, एवरीथिंग विल मूव irrespective of anything, yet you have to be still and understand everything. I hope you must have understood this poetry in very great detail, and I'll be attaching RTC's main theme maybe in the comment, maybe in the description, and I'll be giving you a PDF or everything on your Telegram channel, okay? And Telegram channel ka link I'll be attaching beneath the video. If you have any comment, questions, you can ask me in the comment section. All the best and do well.